ನಮಸ್ತೆ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಕಾಶಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದುವು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಸಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಗಯಾದಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ವಿ. ಹನುಮಾನ್ ಘಾಟಿಂದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾವು ಕೇದಾರ್ ಘಾಟಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಕೇದಾರ್ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೋಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಡೆನೇ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೋಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರೋದು ಕೇದಾರ್ ಘಾಟ್. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಈ ಕಡೆ ಈ ದಡದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾವಿವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಆ ದಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶುಚಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನೀರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗದ್ದಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ನದಿಯ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾಂತವಾದ ನದಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ನಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ, ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಜಾಗ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85 ಘಾಟ್ಗಳಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದದಂದರೆ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್, ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ್, ಹನುಮಾನ್ ಘಾಟ್, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್, ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಒಂದೊಂದು ಘಾಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅನುಭವಿಸೋದೇ ಅನುಭವನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಲೆಮನ್ ಟೀನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಜೀವನ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಯಟಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಸುವಿಧಾ ಅನ್ನೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಾತ್ರೆಯ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. चाय बड़ा 20 का है, छोटा 10। पहले 10 का बनाओ, अच्छा लगेगा। और पियेंगे? बड़ा वाला दे। नहीं, और पियेंगे, पहले दे दो। कैसी है अम्मा जी चाय? चाय बोलिए कैसी है? मस्त है ना। आप पूरे दूध वाले से बढ़िया है, ये आयुर्वेदिक है। हाँ आयुर्वेदिक। अबे ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ನಾವಿಕರು ಅಥವಾ ಆ ಬೋಟಿನ ಸ್ಟಾಫಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಘಾಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಬೋಟ್ ಹೊರಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಕೇದಾರ್ ಘಾಟ್ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದೇ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದ್ ಬಿಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವೇ ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಅದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಾಟ್, ಅದು ಒಟ್ಟು 85 ಅದ ನೋಡಿ ಘಾಟ್, ಒಟ್ಟು 85 ಘಾಟ್. आप बगल वाले घाट के नाम में लाली घाट और थोड़ी लाली उमा का आश्रम है। वो आश्रम बंद हो गया तो उसको चलाने का कोई रहा नहीं गया। और ये लोग है ना, वो स्त्री पंचायत में वो भी कार्तिक पंडाल पुण्य चलता है, वो छिच्चा प्राप्त करता है, कार्तिक पंडाल पट्टी करता है।
ये चारों वेद तो संस्कृत से शिक्षा प्राप्त करते हैं यहाँ पे। जो ब्राह्मण लोग के बच्चे होते हैं वे शिक्षा प्राप्त करते हैं, करने के बाद जो काशी में पंडित पंडित बनते हैं। वो कौन सा है? येलो कलर का बिल्डिंग है वो? हाँ, ये शंकराचार्य का, शंकराचार्य का मठ भी है विद्यालय ये। घाट का नाम है विंध्या नगरम घाट, आंध्र प्रदेश के राजा कृष्णदेवराय ने बनवाया था। और उसका बगल वाले घाट का नाम है केदार घाट। कहा जाता है कि यहाँ के स्वयंभू लिंग कोई स्थापना नहीं कराया। मकर संक्रांति के इलाके में गौरा पार्वती जी आते में भोलेनाथ प्रकट हुए थे। सभी लोग हाथ को नमस्कार कर लीजिए। श्री अर्धनाथ गुरु को प्रकट हुए थे। कितना घाट है इधर जाके? टोटल 84 घाट घूमने के लिए सेपरेट करना। हाँ होता है। अगर सेपरेट जाएंगे तो मिलवा आपको 5,500 रुपए सेपरेट। सबसे कम शेयरिंग शेयरिंग में जाएंगे, शेयरिंग में प्रॉपर घाट देगा। और छोटे बोर्ड जो दिया जाता है, छोटे बोर्ड में आपको पूरा ये घाट ग्राउंड का पूरा घाट कितना होगा? 5,500 कितना चार्ज लगता है? तो लोग जाएंगे 2 घंटा में। और ये सामने वाले घाट का नाम है चौकी घाट। ये अंग्रेजों के जमाने का प्रमुख चौकी था। यहीं पर रानी रासमणी कोलकाता की रहने वाली 365 दिन स्नान किया था, 365 मकान दान में दिया था। जो भी काशी में आता है दान मुख करता है, इसलिए रानी रासमणी भी आई, 1 दिन स्नान किया, 1 मकान दान में दिया। 365 दिन स्नान किया, 365 मकान दान में दिया था। इसलिए रानी रासमणी का बहुत नाम है धरती के अंदर। और एक कल्याणमयी होलकर और एक आनंदमयी माता का, तीनों लोग धरती के अंदर जितना लोग कल्याण के लिए है, देश के लिए किए हैं, कोई लेकिन नहीं किया, कोई केस नहीं किया, जितना उन लोग किए अपनी धरती पर। इनके नाम क्या बताए बना? रानी रासमणी। रासमणी। और ये देखिए जो ओम बना हुआ क्षमेश्वर घाट है, क्षमेश्वर महादेव का मंदिर है। काशी में पूजा पाठ करने से किसी प्रकार से अगर गलती हो जाता है, क्षमा करने वाला क्षमेश्वर महादेव का मंदिर है। सभी लोग आगे को नमस्कार कर लीजिए, क्योंकि गलती क्या हो जाता है हमको पता नहीं चलता। इसीलिए क्षमेश्वर महादेव का मंदिर सोहन क्षमेश्वर महादेव के रूप में प्रकट किया है। और ये बगल वाला घाट के नाम है मानसरोवर घाट। ये मानसरोवर अभी शुरू किया, इसलिए आंध्रा के लोग घूमने फिरने पूजा पाठ के लिए आए थे, अपना आंध्रा आश्रम बना दिए। अभी आंध्रा आश्रम में कोई आंध्रा के लोग जाते हैं, कोई नहीं जाता है। अब बगल वाले घाट का नाम है नारद घाट। नारद घाट में पति पत्नी बहन भाई जोड़े में स्नान नहीं करता। अगर जोड़े में स्नान कर लेते तो आपस में फाटे में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि नारद जी का कर्म क्या था पता है आप लोग को? नारद जी का कर्म क्या था? नारद जी का कर्म क्या था पता है आप लोग को? नहीं। नारद जी का कर्म चुगली करना, इधर के बाद उधर लड़ाना। वो है पर इसीलिए नारद जी यहीं पर आए, सारा स्नान किया, सारा चुगली छोड़ दिया और लास्ट में जल लेकर शराब दे दिया। हमारे स्नान करने के बाद जो जोड़े में स्नान करेगा आपस में फाटे में लड़ाई करेगा। इसीलिए नारद घाट में कोई स्नान नहीं करता है। ये जितने स्नान करे सब राजा घाट में स्नान कर रहे हैं। बगल वाले घाट का नाम है राजा घाट। बाजीराव पेशवा पुणे का राजा का है। इसी जगह घातक मूवी सनी देओल का बना हुआ था। परमहास राम तेरे गंगा मैली ये मूवियां बना हुआ है। रांझना, लाल चड्ढा ये सब मूवी बना हुआ है। विनती करा देते हैं। ये 5 पांडवों का अखाड़ा है। सभी लोग हाथ जोड़ नमस्कार कर लीजिए। और बगल वाले घाट का नाम है टिकपकिया घाट, वेस्ट बंगाल के रानी का। सुबह शाम हरे रामा हरे कितना भजन होता है। शाम के टाइम खाना पीना सब कुछ फ्री मिलता है, लेकिन केवल वृद्ध लोग जाता है, अदर सभी लोग नहीं जाता। जिसका हस्बैंड नहीं हो जाता, जिसका वाइफ नहीं हो जाता। और बगल वाले घाट का नाम है चौसठी घाट। 64 उंगली माता का मंदिर है। सभी लोग हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिए, क्योंकि 64 उंगली माता बहुत गुस्सैल माता है काशी का। साल में 2 ही बार खुलता है, नवरात्र का टाइम खुलता है, होली के टाइम खुलता है, बाकी टाइम बंद होता है। जब खुलता है तो पिंडों का दर्शन होता है, द्वार का दर्शन नहीं होता है।
और उसके बगल वाले घाट का नाम है रणा महल घाट। ये चेतक वाले महाराणा प्रताप जी का है। वो भी काशी में मोक्ष के लिए आए थे, लेकिन उनको समझाने बुझाने के बाद ब्राह्मण लोग समझाए कि आप योद्धा वीरगति मोक्ष प्राप्त उसी तरह हो जाएंगे। जब आप देश कल्याण अगर देश हित के लिए काम करेंगे तो आपको वीरगति प्राप्त हो जाएगा। इसलिए महाराणा प्रताप जी अपना महल दान में करके वापस चले जाते हैं। रहने वाले थे चित्तौड़ के थे, चित्तौड़ के थे वो रहने वाले। और बगल वाले घाट का नाम है दरभंगा घाट, बिहार का राजा का। अभी ब्रिज रमा पैलेस के नाम जाना जाता है। काशी का सबसे महंगा होटल है, 5 स्टार होटल। अभी एक दिन इसका चार्ज 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का। काशी का सबसे महंगा होटल ये वाला दरभंगा घाट वाला। अगर मोबाइल में शो करेंगे ब्रिज रमा पैलेस के नाम जाना जाता है उसको। और बगल वाले घाट का नाम मुंशी घाट। मुंशी प्रेमचंद जो फर्स्ट भारत के हिंदी का लेखक और राइटर थे। मुंशी जी रहने वाले काशी के थे, कि काशी से लमई गांव से यात्रा करके आते थे, यही बैठ के हिंदी के लिखा वो उच्चारण करते थे, इसीलिए उस घाट का नाम पड़ गया मुंशी घाट। काशी कोई घूमना नहीं होता, ये काशी की यात्रा है। एक मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आप लोग जाते हैं, उल्टा काशी की यात्रा करने में फल प्राप्ति होता है, क्योंकि हर एक घाट के अंदर मंदिर 150 आप लोग को मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है काशी की यात्रा कोई घूमना नहीं बोला जाता है कि हम बोट से घूमे। बोट द्वारा काशी की यात्रा जो माँ सीता ने भी किया था, राम जी भी किए थे, भोलेनाथ और पार्वती जी भी किए थे, इसीलिए उसको काशी की यात्रा बोला जाता है। और बगल वाले घाट का नाम है अहिल्याबाई घाट। अहिल्याबाई होलकर इंदौर की रानी, जिन्होंने विश्वनाथ जी मंदिर का स्थापना किया था। स्थापना करने के बाद उनका भाई रणजीत सिंह 40 मन गोल्ड 22.5 मन चांदी दान में दिया था। जो भी काशी में आता है वो दान करता है। इसीलिए रानी रासमणी भी आई, दान किया, अहिल्याबाई होलकर भी दान किया, माता आनंदमयी भी दान किए। ये लाल वाले घाट का नाम है शीतला घाट। शीतला माता का मंदिर है, शक्ति सभी लोग हाथ जोड़ नमस्कार कर लीजिए। ये शीतला मैया का मंदिर है, बोलिए शीतला मैया के। और बगल वाले घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। इसी जगह राजा दशरथ जी 10 बार होम यज्ञ किए थे, इसीलिए इस घाट को दशानंद भी घाट बोलते हैं और दशाश्वमेध घाट भी बोलते हैं। इसी जगह शाम को 6 बजे गंगा आरती होता है, जो काशी का मेन आरती होता है इसी जगह होता है। इसी घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। और बीच वाले घाट का नाम है प्रयागराज घाट। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने नहीं जा पाते हैं, वो यही स्नान कर लेते हैं, सेम फल प्राप्ति होता है। ओनली बूढ़े बुजुर्ग लोग के लिए। और बगल वाले घाट का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट। जो प्रथम भारत के राष्ट्रपति थे, उनका नाम से घाट चलता है। गांधी जी बनवा के दान में दिया। लेकिन यहाँ भी आरती होता है, दोनों घाटों पर सेम आरती एक ही टाइम पर होता है। ये पहले घोड़े का तबेला हुआ करता था, अभी यहाँ भी आरती होता है। 6 बजे स्टार्ट होता है। गंगा के इधर काटने का सबसे सस्ता मीडियम हो गया। और ये जो सागर बना हुआ शेर बना हुआ है ना, ये कालूटम राजा का मकान है। जो राजा हरिश्चंद्र के साथ तो स्वर्ग में जिंदा चला गया था, ये उन्हीं का मकान है कालूटम राजा का। जितना भी राजा हरिश्चंद्र घाट में गंगा करता है, पूरा पैसा इन्हीं के पास से आता है। देश का मालिक कौन है पता है आप लोग को? देश का मालिक कौन है? जो देश का मालिक है, देश का मालिक एक काशी का मालिक को बोला जाता है। डेली के 10 लाख रुपया आमदनी आता है, लेकिन गवर्नमेंट को 1 रुपया भी कोर्ट केस से नहीं भरना पड़ता।
क्योंकि ड्रोन लोग का पैसा को टच नहीं करता, इसीलिए इनका भी पैसा को खींच देते। ड्रोन मतलब समझते हैं आप लोग, जो आग देते हैं। अब बगल वाले घाट का नाम है त्रिपुरी भैरवी घाट। त्रिपुरी भैरवी माता का मंदिर है, हाथ में नमस्कार कर लीजिए। और उसके बगल वाले घाट का नाम है मीर घाट, जयपुर का मीरा भाई। जो पहले का सती प्रथा जो प्रथा चलता था, अगर पति लोग को डेढ़ हो गया, पति लोग को जिंदा जोड़ने के लिए जला दिया जाता था। ये तो फिर घर से बाहर निकल दिया जाता था। इसलिए जयपुर का मीरा भाई देखा अत्याचार कोई नहीं है, पहले अपना आश्रम बनाती है, 25 मरने के बाद विधवा लोग को लाकर खाना पीना सब कुछ देती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम में फिर जाता है तो विधवा लोग आने तो कम हो जाता है। आपको समझ में 25 होता लोग दूसरा शादी कर लेते हैं, इसीलिए इसको भी चेंज कर दिया गया, गणपति गेस्ट हाउस होता बना दिया। अब बगल वाला घाट का नाम है ललिता घाट। नीचे जो फोर्ट लगा हुआ है ना, येलो कलर का मंदिर दिख रहा है तीन विंडो में, वही गंगा माँ का मंदिर है। सभी लोग हाथ जोड़ नमस्कार कीजिए। जिनके गोद में बैठ के घूम सुनने का वो मंदिर है। 4 महीना जब पानी बढ़ा जाता है तो 4 महीना पानी का जरूरत नहीं रहता, इसीलिए गाय काफी अंदर यही गंगा माँ का मंदिर है, गंगा माँ का तत्व। और उनके पेड़ दिख रहा है, उसी के ऊपर जाएंगे सेम पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल वाला मंदिर है। ये ललिता रानी ने नेपाल को बनवाया था। उसके पीछे वाला मंदिर का नाम है पशुपतिनाथ। सभी लोग हाथ में नमस्कार कीजिए, बोलिए पशुपतिनाथ महाराज की जय। और बगल वाला घाट का नाम है कॉरिडोर। जो मोदी जी 400 मकान खुलवा के कॉरिडोर बनवाए थे, वो बीआईपी मंदिर बनवाए थे। इसलिए वाला घाट पे मोदी जी नहाए थे, नहाने के बाद उद्घाटन किए थे। बट ये बात था ना, मकान तो उनको मोदी जी पैसा दिए थे, मोड़ के बर्बाद दिया था। 8 लोगों को आया जिनका मकान पैसा दिया, बाद में बीआईपी मंदिर का घेर बनवाया। इसी के अंदर बाबा विश्वनाथ जी का, माता माता का, अक्षय राज्य का मंदिर है। सभी घाट पानी में डुबकी लगाएंगे। अपना मोबाइल जो भी मोबाइल है, पैसा है, कौड़ी अपना ध्यान से रखकर स्नान कीजिए। जल्दी ने आके आज जाने में बहुत ही लगती है। कल गया ये बात नहीं, आना नहीं है। भगवान दरबार है, भगवान के आते जब चाहे किसको बुला लीजिए। हम लोग भगवान नहीं बुलाते, इसीलिए उनके इच्छा द्वारा हम बुलाते हैं ना। आप लोग क्या करते हैं? नहीं जी राम, कौन की इच्छा थी? हां वो तो आप ही नहीं है बुलाया है आपके मस्जिद में, आपके कौन से है भूल से है। जब मरने को गलती है वो आपके देव वाले ना आया रोज पूजना कर दो। उसके बाद जब अपन 3 बजे निकला ना, बाप रे बाप, मुझे तुमको चलना नहीं पड़ेगा, तुमको हासिल करना इसी बात को। अभी काशी मुक्ति ना चप्पल पर सब बोर्ड पे रखी है। नहीं वो हर हो जाएगा, किनारे नहीं जा मान लिया था होटल में। अभी इधर नहीं लगा रहा तो सही रहा। कभी पर ही हो गया रात में। आप लोग आइए, देखा कुछ मोबाइल से देखा। बैग तो बैग चप्पल निकालिए, चप्पल निकालिए। नहीं तो मिल जाएगा। अरे ಒಂದ್ಸರಿ ನೀರಾಗಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ತಂಡಿ.